Good morning to everyone. I am Kuldeep Swami, physics teacher at Suraj School, Mahendragarh. Dear student, today we will discuss about distance and displacement. Today our topic will be the distance and displacement. Dear student, suppose this is point A, this is point B, and this is point C. Body have to travel A to C. बॉडी को A से लेकर C पॉइंट पे जाना है. A से B चला जाएगा वो, और B से कहां चला जाएगा वो? C चला जाएगा. Suppose this is the 4 kilometer and this is the 3 kilometer. Body have to travel a path from A to C, and that path is A to B and B to C. This is the actual path, and this path is called the distance. Actual path traveled by body between any two points, any initial and final points, is called distance. But this is the another way to reach A to C. Now this is a right angle triangle. If this is a right angle triangle, then by Pythagoras theorem, this is 5 kilometer. By Pythagoras, we can say hypotenuse is equal to under root of perpendicular का square plus base का square, 3 का square plus 4 का square, 9 plus 60, 25. आंसर कितना रहेगा? 5 किलोमीटर. So this is the shortest path, and this shortest path is called displacement. So that is the actual path, and this path is called the distance, and this is the shortest path, and this path is called the displacement. So the actual path is called distance, and the shortest path between the 2 points is called displacement. This is point A, this is point B. Body goes A to B. This is the 4 kilometer. Calculate distance and displacement. We have to calculate the distance and displacement. Dear student, body goes A to B. That is the actual path. So distance is equal to 4 kilometer. Here there is no shortcut for A to B. So displacement is also 4 kilometer. इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट हो 5 आ रहा है, डिस्टेंस हो 7 आ रहा है. तो वहां से हम क्या कह सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, और यहां से हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस. नाउ इन अनदर केस, there is a circular path having radius 7 centimeter. This is point A, this is point B, this is point C, this is point D. First, we have to calculate distance and displacement from A to B. Body have to go A to B. This is also 7, this is also 7, and this is also 7. If body goes A to B, then it travel the first quadrant, one quadrant. So distance will be the total distance multiply by 1/4 मैं बोल सकता हूं. इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? इसका सरकमफ्रेंस कितने क्वाड्रेंट कवर करेगा? एक. टोटल कितने थे? 4.
So 2 into 22 by 7 into 7 into 1 by 4. 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 2 से 11, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। पूरी डिस्टेंस निकाली हमने देखा ए से बी जाने में एक क्वाड्रेंट को ये कवर कर रहा है, तो क्यों ना हम उसका 1/4 निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डिस्टेंस। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये वाला शॉर्टकट रास्ता था उसके पास जाने के लिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो फिर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 49 प्लस 49 अंडर रूट ऑफ 98, उसको क्या लिख लो 49 इंटू 2 लिख लो, आंसर क्या आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट यहां से क्या आ गया 7√2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस। इसी का सेकंड केस उठाते हैं। बॉडी को जाना है A to C। अगर बॉडी A to C जाएगा तो बॉडी 2 सर्कल कवर करेगा, तो टोटल क्या था 2 पाई आर। कितने क्वाड्रेंट कवर किए 2, कितने में से 4 में से। सो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 2 बाई 4, 2 2 जा कैंसिल, 7 से 7, आंसर विल बी द 22 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये शॉर्टकट रास्ता है जाने के लिए A to C, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 7 प्लस 7, आंसर क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट इज द लेस देन द डिस्टेंस। तीसरा केस उठाते हैं, A to D जाना है उसको। A to D जाने के लिए उसको 3 क्वाड्रेंट कवर करने पड़ेंगे एक्चुअल पाथ से। एक्चुअल पाथ से 3 क्वाड्रेंट कवर करेगा तो 2 पाई आर इंटू 3/4, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 3/4 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 से 11, आंसर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, देखो A to D आने का छोटा रास्ता यही तो था। ये फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर, 7√2 सेंटीमीटर। फोर्थ केस के अंदर जाते हैं, बॉडी को जाना है A to A। A to A आएगा तो टोटल कितना डिस्टेंस है 2 पाई आर, कितने क्वाड्रेंट कवर किए 4, कितने में से 4 में से। सो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आंसर विल बी द 44 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। बट जब A से लेकर A पे आएगा तो कोई भी शॉर्टकट नहीं बचेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप पहले केस में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, दूसरे में मैंने पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और तीसरा इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट में भी 0। हमने 3 न्यूमेरिकल किए, किसी भी न्यूमेरिकल में ये नहीं आया कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। तो ये फिनोमेना कभी भी नहीं होता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी है और डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस। This is a circular path, radius is 101 centimeter. Body have to go A to B. Body have to go A to B. जनरल क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। A to B अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। तो देखिए ये वाला इसको सर्कल कर लेते हैं, तो ये वाला हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे काफी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसके लिए शॉर्टकट होता है, अगर इस एंड के ऊपर या फिर इस एंड के ऊपर, इस स्टार्टिंग पॉइंट से या तो B या फिर यहां से ये C हो जाएगा, यहां से ये D, अगर ये पूछता है या ये पूछता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, उसकी जो रेडियस होती है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये उसका आंसर होता है। रेडियस को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, आंसर होता है। क्लियर? उसके बाद देखिए ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, बॉडी A से C पे गया, टोटल डिस्टेंस है ये 400 मीटर है, वो 100 मीटर वापिस आ गया,
यहां पे जाने के बाद वो यहां पे क्या आ गया, वापस आ गया। पूछेगा कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां से डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 500 मीटर, क्योंकि 400 मीटर तो वो गया, 100 मीटर वो वापस आया, तो एक्चुअल पाथ कितना हुआ 500 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो यही वाला आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 400 माइनस 100, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 300 मीटर। तो दैट इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस बॉडी का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू एवरीवन।